Friends, I welcome you all in the second part of this first technical session. This session is all about goods and services tax, GST litigation, and their solution. In this session, we have Sri Manoj Kumar Kedia, IRS, Principal Commissionerate, North Calcutta. We have GST expert, our past president of this association, Shri Sushil Kumar Goel. We have another GST expert, CA Dr. Arpit Haldia from Jodhpur. I request CA Prakash Patwari. I request CA Prakash Patwari to escort the guest speaker, Sri Manoj Kumar Kedia, CA Dr. Arpit Haldia, and session chairman, CA Sushil Kumar Goel on the dais, and request them to take their seats. Now I take this opportunity to read out the brief profile of Sri Manoj Kumar Kedia. Sri Manoj Kumar Kedia ji is an IRS officer of 1994 batch, presently working as Principal Commissionerate, CGST, Calcutta, North Commissionerate. He has completed BTech in Civil Engineering and MTech in Structural Engineering from IIT BHU Varanasi, and his profile is displayed in the screen. Okay. Now our next speaker, CA Dr. Arpit Haldia. CA Dr. Arpit Haldia has been a regular speaker since 2007 in seminar, conferences, and the study circle meeting organized by various committee of ICAI, branches of Institute of Chartered Accountants of India, and other trade and professional bodies. His articles have been published on GST, VAT, and direct taxes. He is national faculty of ICAI for member of ICAI. He secured All India 36th rank in CA intermediate examination held in the month of May 2000. He is PhD in comparative study of existing system of sales tax and proposed system of value added tax. And his profile is displayed on the screen also. Now our third is session chairman, CA Sushil Kumar Goel. He is past president of our association. He is partner of PK Mitra and Company, and his profile is displaying on the screen. Now I request CA Sanjay Poddar ji to present a bouquet to our Sri Manoj Kumar Kedia. Please put your hands together and welcome him. Now I request CA Anil Sarawgi ji to present bouquet to CA Dr. Arpit Haldia. Please put your hands together and welcome him. Now I request CA Bajrang Agrawal to present bouquet to CA Sushil Kumar Goel. Please put your hands together and welcome. Now I hand over the proceeding to our session chairman, CA Sushil Goel. Sri Manoj Kumar Kedia, Principal Commissioner, Calcutta,
GST, CA Arpit Haldia, CA Dr. Arpit Haldia, speaker in today's session, office bearer of BIP Road Chartered Accountant, past presidents of the BIP Road Chartered Accountant, and my dear friend. It is indeed a great pleasure for this opportunity that BIP Road has given to me. I am thankful for this. This particular session on indirect tax, which is mainly focusing on the appeal mechanism, litigations and all. And we have invited two very learned faculties. One is Kedia sir and Dr. Arpit Haldia. Both will speak on the topic as the session progresses. But one thing is in GST, let me set the tone, when we are talking about the GST, number of things yet to be settled down in GST, I must say. Why I am saying so? So far even the tribunal is not set up. We are going to complete 7 years on 30th June and tribunal is not set up. Then somebody asked me, what is the problem if tribunal is not there? Problem is there, it not giving encouragement to SSC to dispute the demands. For two reasons. One is the time consuming, because he will be in dispute whether what will happen to his case or what will be the future. And second is the cost of litigation. Sometimes cost of litigation is so high, if you directly go to High Court or Supreme Court, through High Court, then you are not sure. Why I am saying so? One of the vehicle was intercepted by the state GST department, and I was introduced to Commissioner SGST and called him, and he told, why not you go and get released it from High Court? Because the officer was adamant and he was also finding it little difficult to give the order to the particular officer. Then I said, sir, what is the surety that the High Court will give me the relief? First. And second, it is time consuming. Third is the cost of litigation. So he accepted that. And sir, definitely when Manoj Kedia ji is here, we definitely look early introduction of tribunal in the country. And second thing, when we talk about litigation, like in real estate sector, one case is pending before the Supreme Court, most popular judgment, that is Safari Retreat, whether credit should be allowed to the builder who is going to let out the property or put it for some other use for business purpose, whether credit should be allowed. So High Court given a judgment that credit should be allowed. But department went to the Supreme Court, and it is pending there. Now every SSC in confusion whether they should take the credit or they should not take the credit. I definitely want Arpit ji to comment on this, because I am little bit fearful on this type of situations. After seeing the amendment, that is section 7(1) AA, whether membership of club or associations are taxable or not. This was the case before the Supreme Court, and Supreme Court given a judgment that clubs and associations are not liable to pay tax on the membership fees or contribution received from the members, applying the mutuality concept. Then tax should not be there. To my surprise, we see an amendment in section 7(1) AA, which brought in and say that tax will be applicable on this, and explanation to this particular amendment says that it will override any other act in the country and any judgment of any court. So even tomorrow the Safari Retreat came in favor of the appellant or the SSEs, taxpayer we call, most particularly in GST.
I am always be apprehensive of this particular way of retrospective amendment, because we have to see what is the intention of the government. Whether government want to tax this particular transaction, government want to allow us the credit or not. So here I definitely wish always that government must clear it at the initial stage only when the litigation starts. Earlier this were used to happen in service tax or central excise. When some dispute point have arisen, government by way of circular or by way of amendment clarified the things that we are not going to charge tax on this particular transaction, or we are going to charge the tax on this particular transaction. So this a thing which must see. And one, before I invite both the speaker to share their thoughts, one thing I must say, in GST, government is doing something, GST Council is doing something, acts, rules, all these are working very fine. But something which is not part of the act done by GSTN, there is a third authority which is not part of the act, but it is done by them and we have to comply it. Even in litigation, Arpit will appreciate this DRC 01A coming, or the ASMT 10 is coming. There is a column, interest to be paid on late reporting of the invoices. But Act doesn't contain this type of provision that you have late reported the invoices and you have to pay interest. But notices are coming and they are having this particular column. If you are not giving answer to this or not complying with this, demand are getting confirmed. So this type of things are there. But which is most pinching to my, and I always raise this, that is the implication of the Journal Clause Act. The due date cannot be on a holiday or a Sunday. Journal Clause Act says if due date is on holiday or Sunday, then next day will be your due date. But GST has not accepted this. GST has not accepted this, and not accepting that even on due date 20 तारीख को अगर दीपावली भी है तो रिटर्न 20 को ही फाइल करनी पड़ेगी. Then I went and raised this point before one of the senior in the department. He said, "अब wait क्यों करते हो? और दीपावली है तो पहले दिन क्यों नहीं कर देते?" Then I surprised to note this. दीपावली है पहले दिन नहीं करते सर. दीपावली के पहले दिन भी हमें कुछ काम रहता है. अगर दीपावली है मेरे नेक्स्ट डे तो मुझे दीपावली के पहले दिन भी कुछ काम होगा. और सर अगर ये देश में ये माना गया है कि अगर संडे है, हॉलीडे है, even in case of appeals also, now you can not filing appeal on Sunday, if it is due date, it is not accepted. So these things must be taken care by the GSTN or the department, I must say. And thank you for the patient hearing. Now I straightway request Sri Manoj Kedia ji for his deliberation. Over to Manoj Kedia ji. थैंक यू. सभा में उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन को, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया. पिछले सेशन में मैंने देखा कि बातचीत काफ़ी टेक्निकल हो गई थी. मुझे लगता है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस में हम टेक्निकल बातें कम करें और जनरल बातें ज़्यादा करें, जो सबसे ज़्यादा सभी लोग इस चीज़ को समझ पाएँ. मुझे टॉपिक दिया गया है जीएसटी लिटिगेशन. मैं केवल जीएसटी लिटिगेशन नहीं,
बट जो मेरा एक्सपीरियंस है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पिछले 28 सालों का, वो शेयर करूंगा। जीएसटी की क्या समस्याएं हैं, गवर्नमेंट की क्या फीलिंग है, पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट क्या महसूस कर रही है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में, जीएसटी की क्या परेशानियां हैं और किस तरह के डिस्प्यूट आ रहे हैं, ये डिस्प्यूट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए तो आप जीएसटी को बेटर ढंग से डील कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि जब लिटिगेशन है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या रोल होते हैं और आप किसी भी लिटिगेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो कितना टाइम है मेरे पास? सो मे बी हाफ एन आवर। मैं कोशिश करूंगा काफ़ी ब्रीफ में और बहुत कॉन्साइज में आपको बताऊं ताकि आपको बातें समझ में आए और आप जब तक आप जीएसटी को हैंडल करते हैं तो आप प्रॉपर ढंग से उसको हैंडल कर सकें, डिस्प्यूट कम हो और कोई भी डिस्प्यूट आए तो आप डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव में, आप असेसी के पर्सपेक्टिव में दोनों ढंग से सोच के और बेटर ढंग से किसी भी जीएसटी को के डिस्प्यूट को डील कर सकते हैं। जीएसटी को अगर आप समझें तो जीएसटी है क्या बेसिकली? जीएसटी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इनपुट, जो भी आपके इनपुट के जो खर्चे हैं उस पर जो टैक्स होता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि उस पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। और जो आप वैल्यू एडिशन करते हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ खरीद के अगर आप 150 रुपये में बेचते हैं तो एक्चुअल टैक्स जो आपको कैश में पेमेंट करता है, आईटीसी का जो पेमेंट है वो बेसिकली नलीफाई होता है पुराने इनपुट के टैक्स से। सो वो एक्चुअली टैक्स नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग उसको टैक्स बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जो कैश से आप पेमेंट करते हैं वही टैक्स है। सो जीएसटी का टैक्स बेसिकली वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स है। मेरे हिसाब से जो पीछे बैठे हैं अगर वो सामने बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पीछे खड़े हैं बातचीत ना करें। लेट्स अंडरस्टैंड कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता है, ये हमारी समस्या है। चाहे वो इनकम टैक्स हो या वो जीएसटी हो या किसी भी तरह का टैक्स है, कोई देना नहीं चाहता है। हमारे कंपल्सन क्या है? हमारे कंपल्सन है अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक आपस में दो अलग चीजें हो जाती है कि हम टैक्स देना नहीं चाहते हैं और टैक्स हमें देना पड़ता है। और अगर आपको सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉपर ढंग से टैक्स देना है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। आप माने या नहीं माने, आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल अभी जितना है उसके 10 टाइम्स, मे बी 50 टाइम्स बढ़ने वाला है। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट के जितने रोल थे वो मोर और लेस डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थे। मुझे याद है जब सर्विस टैक्स पहली बार आया, सेंट्रल एक्साइज में मुझे नहीं लगता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बहुत ज़्यादा रोल थे जब सेंट्रल एक्साइज था। कस्टम ड्यूटी जब जो कस्टम्स के पार्ट थे उसमें गवर्नमेंट ने सीएचए बना रखा था, कस्टम हाउस एजेंट्स, और कंपलसरी था कि जितने भी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल होगी उसमें कस्टम हाउस एजेंट एक रहेगा ही रहेगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जितने इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर है उसको गवर्नमेंट, अगर कम ड्यूटी पेमेंट हुई है तो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को। कुछ फिक्स्ड इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे, कोई फ्लाइनाइट ऑपरेटर इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे। तो सीएचए का रोल उन्होंने फिक्स कर दिया कि सारे बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में सीएचए रहेंगे।
जिससे क्या होती थी कि गवर्नमेंट को बहुत आसानी होती थी कि वो इंपोर्टर को ट्रैक कर सके, एक्सपोर्टर को ट्रैक कर सके। पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल आए जब सर्विस टैक्स आया, मुझे आज भी याद है जब कलकत्ता में मैं था 1996-97 में, तब मेरे हिसाब से अरुण अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हैं यहाँ के, जो पहली बार उन्होंने सर्विस टैक्स का काम देखना शुरू किया था। सब लोग जानते होंगे, मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया या बहुत ज़्यादा उसमें इंटीग्रेट नहीं किए। धीरे धीरे सर्विस टैक्स बढ़ते चला गया और आफ्टर जीएसटी मतलब समाप्त हो गया, जीएसटी आई, लेकिन जीएसटी के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल बढ़ने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि मैं पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। पहले इस तरह की चीज़ें थी नहीं। समय आ गया है कि जीएसटी में, जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा सेंट्रल एक्साइज सिंप्लीफाइड था, सर्विस टैक्स सिंप्लीफाइड था, हम लोग ने कोशिश की कि जीएसटी सिंप्लीफाइड वर्जन आए, लेकिन जीएसटी का सिंप्लीफाइड वर्जन सामने आया नहीं। जितने हमने सिंप्लीफाई किए उतना जीएसटी कॉम्प्लिकेट होता चला गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, देखिए मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। इस चीज़ को जब आप लिटिगेशन में घुसाएंगे तब ये आपको हेल्प करेगी। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज की जब बात उठती थी तब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट थी। उसमें जितने भी डिसीजन होते थे वो सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप लेती थी। बोर्ड बहुत आसान था डिसीजन लेना, लेकिन आज जब जीएसटी बन गया है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट समाप्त हो गया है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है? ऑल द स्टेट्स एंड द सेंटर। ऑल द सेंटर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन है उसके, लेकिन डिसीजन केवल चेयरमैन से नहीं होता है। डिसीजन जब सारे स्टेट के मेंबर एग्री करते हैं तब डिसीजन होता है। इसीलिए आज प्रॉब्लम है जीएसटी में, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इतनी आसानी से सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसका कारण है जीएसटी काउंसिल। उनसे डिसीजन निकालना, चीज़ को बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दे आर 32 मल्टीपल मेंबर्स, सारे स्टेट के मेंबर्स हैं, सबको एग्री करना है। उसको एग्री करवाना इतना आसान नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द जीएसटी। सो अभी जो है जीएसटी जो कॉम्प्लिकेट हो गया है। दूसरी चीज, जितनी भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जीएसटी में तो डिपार्टमेंट कोशिश किया उस प्रॉब्लम को निकालने के लिए। जब प्रॉब्लम को हम निकालने की कोशिश करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारा जो चेंबर है ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाता है। सो एवरीवन फील्स पेन। बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे ट्रेड पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपार्टमेंट को टाइट करेंगे तो डेफिनेटली जो अच्छे सही से ढंग से टैक्स पेमेंट करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सो ये प्रॉब्लम शुरू हुई। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट आवर ट्रेड। ट्रेड की साइकोलॉजी कैसे चलती है। सी, जब सेंट्रल एक्साइज था तो ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स पेमेंट होता था। मैं अपने पूरे कैरियर में मैंने एक भी ऐसा टैक्स पेयर नहीं देखा था सेंट्रल एक्साइज, इवन इन सर्विस टैक्स, कि मैंने अपनी टीम भेजी और टीम वालों ने कहा कि वहां पर कोई नहीं है। ऐसा एक भी केस नहीं था। आज की डेट में मैं हर एक महीने कम से कम 100 जगह भेजता हूं और मुझे एक जगह नहीं मिलती जहां पर वो कहते हैं कि वहां पर कोई आदमी है। ये चेंज आप देखिए। सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स में कोई भी फेक नहीं थे। आज आपका जीएसटी में प्रॉब्लम आ गई कि आपके, यानी अब मैं परसेंटेज नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये परसेंटेज 80% हो सकता है सब फेक हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है इन जीएसटी। क्यों है? यू हैव टू थिंक। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं। सी, प्रॉब्लम क्या हुई? पहली प्रॉब्लम ये हुई कि
there was a merger between VAT and the indirect tax. मर्जर का मतलब है कि जब वैट था तो वो सारे छोटे छोटे अमाउंट भी लेता था. उनके थ्रेशोल्ड मतलब 10 लाख थे, 8 वट एवर थ्रेशोल्ड वॉज देयर. बट सेंट्रल एक्साइज में थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा था. ट्रेडर कवर्ड नहीं होते थे उसमें. हमारे आज जीएसटी में ऑलमोस्ट 99 to 95% आर ट्रेडर्स, एंड traders are not educated at present to pay tax. That is the problem. What I personally feel कि जीएसटी जो लिटिगेशन है ये एक लीगल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम हो गई है. सोशल प्रॉब्लम क्यों? सोशल प्रॉब्लम ये कि हम टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहते हैं. हमने लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की, चाहे गवर्नमेंट या चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज, कि भाई आप टैक्स पेमेंट करना शुरू करो. आप जो पहले अभी देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स केवल इनडायरेक्ट टैक्स नहीं रहा. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों कनेक्ट हो चुके हैं. इनडायरेक्ट टैक्स पर में जो आपका वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स है, मे बी 5%, मे बी 12% और 18%. इसी वैल्यू एडिशन के सर्टेन पोर्शन आपके इनकम में कन्वर्ट होती है. मे बी जो आपका वैल्यू एडिशन 100 रुपये की है तो 30 रुपया आपका इनकम में कन्वर्ट होता है, और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है. व्हाट आई पर्सनली फील कि आपकी प्रॉब्लम जीएसटी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम इनकम टैक्स है. देखिए मैंने कम से कम भी तो 5000 बड़ी बड़ी कंपनियों के बैलेंस शीट पर्सनली पढ़ी है. मैं बॉम्बे में था, ऑडिट में था. ऑलमोस्ट जितनी इंडिया की बड़ी कंपनीज है उसकी सारी बीकेसी में उसकी ऑफिस है, साउथ बॉम्बे में उसकी ऑफिस है, और सबकी हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी है. मैं छोटे छोटे ट्रेडर्स की भी हमने बैलेंस शीट पढ़ी है. आप देखेंगे उनके टर्नओवर 50 करोड़, उनकी इनकम है 5 लाख रुपया. क्वेश्चन ये उठता है कि 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके वो 5 लाख प्रॉफिट में क्यों लैंड करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन विच एवरीवन हैज टू आंसर. इज इट करेक्ट, इज इट रॉन्ग, और समथिंग मैनिपुलेशन इज हैपनिंग देयर. आप चीज को समझे. वाई चार्टर अकाउंटेंट? द इंटायर डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन योर एनुअल रिपोर्ट. इंटायर डिपार्टमेंट आप जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं जिसको चार्टर अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, मे बी अप टू मोर देन 1 करोड़ के टर्नओवर पर सर्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं. एंड वी टेक इट एज ए बाइबल कि जो चार्टर अकाउंटेंट ने सर्टिफाई कर दिया वो सही है. क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड, इज इट करेक्ट? मैं अपनी स्टैटिस्टिक्स बताता हूं आपको. कलकत्ता नॉर्थ जहां पर आप बैठे हैं उसी जुरिस्डिक्शन में एट प्रेजेंट 80,000 टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं. इस 80,000 में केवल 2,000 टैक्स पेयर है जो कैश से पेमेंट करते हैं. 88,000 टैक्स पेयर कैश से पेमेंट नहीं करते. इज इट करेक्ट? क्या हो रहा है? वी नीड टू क्वेश्चन आवर सेल्व्स. सी, डिपार्टमेंट कैन नॉट रन आफ्टर ईच एंड एवरी वन. वी डोंट वांट. आप महसूस करें जब आपके घर में कोई घुस जाता है आपको कैसा लगेगा? यू डोंट फील गुड. सो डिपार्टमेंट ऑल्सो डज नॉट वांट कि किसी के घर में, किसी की ऑफिस में, वी वांट यू टू डू द बिजनेस. आप बिजनेस करें, प्रॉपर टैक्स भरें. थोड़ी बहुत गलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, प्रॉपर टैक्स भरें. तो इस 2% में केवल कैश आता है. आप ये देखेंगे पिछले 5 साल में 2017 से
एक कमिश्नरेट में 40,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। 40,000, कैन यू इमेजिन? अगर आप पर डे की कोशिश करेंगे, पर डे का आप निकालेंगे कितने रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करते हैं, जो फेक इनवॉइसिंग पास ऑन कर रखे हैं, उनके पास कोई इनपुट भी नहीं है, इशू करते रहते हैं। ऑन एन एवरेज 3 से 4 रजिस्ट्रेशन हमें पर डे का कैंसिल करना पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि जिसका मैं कैंसिल किया हूं वो मेरे सामने आए, मैं उसका रिस्टोर कर दूंगा। पिछले 4 महीने में एक भी व्यक्ति नहीं आया। ये मैं आपको करेक्ट स्टेटिस्टिक्स अभी के बता रहा हूं। ये प्रॉब्लम है। बड़ी से बड़ी कंपनियां आईटीसी से पेमेंट करती है। क्यों है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके। ये डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सी, दिस इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब लोग मतलब उसी में है। इट इज अ मल्टीपल थिंग। अभी इतने ज्यादा केसेस, आप समझ रहे हैं कि केसेस तो हैं। क्या डिपार्टमेंट के पास टूल है इसको डिटेक्ट करने का? हां, डिपार्टमेंट के पास टूल है। किस तरह के टूल हैं? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न में आप लोग फाइल करते हैं, चाहे वो GSTR 1 हो, GSTR 3B हो, GSTR 9 हो, 9C हो, ई-वे बिल हो, और सारी चीज़ें कैप्चर होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है। पिछले सेशन में गिरीश जी बता रहे थे कि एवरीथिंग इज कैप्चर्ड, एवरीथिंग। आप इमेजिन कीजिए, आप ऑलमोस्ट मॉल कल्चर हो गया है। जब आप परचेज करने जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट मॉल में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, और दे आस्क योर मोबाइल नंबर। अगर इनकम टैक्स आपके मोबाइल नंबर से जितने भी आपने परचेज किए वो उठा लें, इट बिकम्स अ बिग इशू। होने वाला है, समय बदलने वाला है, थिंग्स विल बी कैप्चर्ड। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस टूल हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे कंप्यूटर पर अगर मैं चाहूं तो आज भी 10,000 केसेस कर सकता हूं। मेरे पास टूल नहीं है, मैं कितने केस कर सकता हूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इतनी सारे मैंने जो आपको बताई है, क्यों बताई है? दिस इज द फैक्चुअल फैक्ट। जो एक मैं आज कमिश्नरेट का बता रहा हूं, ये बेसिकली इंडिया की हालत है। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया नॉर्थ कमिश्नरेट का फॉर दिस ईयर 2023-24 अप टू दिसंबर, 9 महीने का। इसमें पूरा टर्नओवर जो डिक्लेयर हुआ 450, रफली मैं बता रहा हूं आपको, 450,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था। 450,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था। टैक्स कितना डिक्लेयर्ड हुआ? 10%, मतलब 40,000 करोड़ रुपीस का टैक्स डिक्लेयर हुआ। मतलब अगर आप देखें तो 10% उन्होंने डिक्लेयर किया। अब आप चीज को समझे, एवरेज रेट आपकी 18% है। एवरेज रेट आप ठीक है, मतलब 18, 5, 12, 18, तो आपका रफली 15% पर आना चाहिए या 14% पर आना चाहिए। इट इज कमिंग टू 10%। उसके बाद कितना आईटीसी से पेमेंट हुआ? आउट ऑफ 40,000 करोड़ रुपीज, 36,000 करोड़ रुपीज वर पेड फ्रॉम आईटीसी। कैश कितना पेमेंट हुआ? रेस्ट 6,000 करोड़ रुपीज कैश पेमेंट हुआ। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करें, इट कम्स आउट टू बी 1.5%। इसका मतलब ये है कि अगर हम सब कुछ हटा दें और केवल 2.5% का है आप टर्नओवर पेमेंट कीजिए, और उसको मैं 2% या 3% भी गवर्नमेंट लगा दे, तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। बट वाई वी आर नॉट डूइंग इट? वाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट? द रीजन इज गवर्नमेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंटायर योर ट्रांजेक्शंस। ये टैक्स जो है, इट्स नॉट अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। आपके ये जो डाटा जाते हैं,
ये पूरा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए डाटा जाते हैं. इट इज क्रिएटिंग द डाटा ऑफ एवरीथिंग. आपके एक एक इनवाइस के डाटा आप देखिए कि इनवाइस को भी ई इनवाइस की बात हो गई है. 5 करोड़ का जिसका टर्नओवर है उसको हर एक इनवाइस ई इनवाइस में कन्वर्ट करना है. गवर्नमेंट के आप प्रपोजल को देखिए. अभी हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट वी आर फोर्स टू टेक द एक्शन इन केस ऑफ ई इनवाइसिंग. अगर मतलब जिसके 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर हैं उनको ई इनवाइस इशू करनी है. और ई वे बिल तो आप जानते ही, मतलब आपके एक एक ट्रांजेक्शन को कैप्चर गवर्नमेंट कर रही है. दे आर नॉट वरीड अबाउट द टैक्स. अगर टैक्स लेना होता तो आपका सीधा ट्रांजेक्शन में कर सकते थे. 3% करते गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स आ जाती. सो इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू. इंटायर होलिस्टिक व्यू से गवर्नमेंट बेसिकली सारा काम कर रही है. इवन इफ एवरीथिंग आपको लगता होगा सब आईटीसी से लेना और देना क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाई दे आर डूइंग इट. बट गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट ओनली टैक्स, बिकॉज यहाँ से सारी पॉलिसी की प्लानिंग होती है, डायरेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं. इट इज़ क्रिएटिंग द डाटा. व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर मीन्स आपका कोई भी परचेज सेल होगा, सप्लाई होगा, आप बिल इंटरनेट में बिल बनाइए और भेज दीजिए, बिल आपका चला जाएगा, टैक्स पेमेंट कर दें. दैट इज द फ्यूचर. मतलब एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कैप्चर्ड. अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड पर कैप्चर हो रहा है, 5 करोड़ के ऊपर का कैप्चर हो रहा है. इट में लीड बिल्कुल डाउन टू द लाइन. इवन जो एक छोटी सी दुकान है वो इंटरनेट पर अपने इनवाइस बना रहे हैं और इट विल बी, और केवल पेमेंट एक साथ नहीं होगा, ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा. इस तरह के सिस्टम आ सकते हैं. जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके जो आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते चले जाएंगे, चीज़ें आपकी डिफरेंट होती चली जाएगी. तो मेरा केवल एक यही आप लोगों से आह्वान है कि यू चेंज, मतलब आपके जो रोल हैं, क्योंकि यू आर द बेसिकली द पर्सन who is going to contribute the maximum in the exchequer of the government. क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के एनुअल रिपोर्ट को सर्टिफाई करने वाले हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिटिगेशन में शिफ्ट करूंगा. आप कहीं भी चांदनी चौक में चले जाइए, दे विल नॉट इश्यू द जीएसटी इनवाइस. एक नॉर्मल उन्होंने पेमेंट किया चला गया, पेमेंट किया चला गया. आई वॉज सिटिंग एट, मैं किसी एक दुकान में बैठा था, नाम नहीं बताऊंगा, प्लेस नहीं बताऊंगा. हिज टर्न ओवर मे बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज. ही वॉज काउंटिंग मनी लाइक एनीथिंग. इतनी सेल थी. रिटेलर्स, आई आस्क्ड हिम कितना जीएसटी देते हो कैश में. हिज आंसर वॉज, मैं तो 4,000 रुपया चार्टर अकाउंटेंट को दे देता हूं. इमेजिन, जिसके टर्नओवर 10 करोड़ हैं उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम से कम भी तो 1.5 करोड़ रुपए की होगी. उसका वैल्यू एडिशन अगर 1.5 करोड़ का भी होता है तो 27 लाख रुपया में भी 20 लाख रुपया उसका कैश का पेमेंट होता है. उसकी प्रॉफिट अगर 1 करोड़ भी है तो उसका इनकम टैक्स कम से कम भी तो 30 लाख होता है. ही इज इवेडिंग इट. इट्स नॉट, सी टैक्सेशन मतलब उसका माइंड की सेटअप की बात है. लोग टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहते हैं. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं. मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द मारवाड़ी बैकग्राउंड. अगर आप कपड़े के दुकान में होंगे पुराने, गो बैक टू 25 ईयर्स बैक, तो उसमें एक टैक्स लगता था. कोई नाम बता सकते हैं कौन सा टैक्स लगता था? नो, धर्मादा. अगर पुराने वाले कोई होंगे, हाँ, धर्मादा करके होता है. वो बेसिकली धर्मशाला में जाता था या गौशाला में जाता था डायरेक्टली, और कोई भी व्यापारी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं देता था. दे यूज टू पे, वो सारा का पैसा सारा जाता था धर्मशाला या वहाँ पर. सी टैक्सेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग. आपका पैसा जो है, आप अभी जितने भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये आपकी कमाई से जो आपने पैसे दिए हैं उसका खर्चा है. ये डेवलपमेंट जब तक आप पैसे देंगे, मैं आपको बताता हूं, मैं कस्टम्स के बारे में बताता हूं आपको. कस्टम की ड्यूटी जब मैं इंटर किया था और उसके पहले 100% हुआ करती थी. टैक्स रेट घटते गया, टैक्स बढ़ते गया.
ये प्रिंसिपल है कि जितना आप टैक्स पेमेंट करेंगे टैक्स रेट उतने घटते जाएंगे। आई नो 18% एंड 30% इज टू हाई, बट प्रॉब्लम इज वी आर नॉट पेइंग टैक्स ऑनेस्टली। दिस इज आवर प्रॉब्लम। आप घटाइए इसको। मैं बताया कि टर्नओवर के कितने टैक्स, 3% से 4% टैक्स अगर पेमेंट सब लोग ईमानदारी से करें, प्रॉब्लम सॉल्व। उससे ज़्यादा की टैक्स रेट आपको आज से कम तो 5 टाइम्स टैक्स आपके बढ़ जाएंगे, बट इट हैज़ टू बी पेड ऑनेस्टली। विद दिस आई थिंक फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव मैं आपको सारी चीज़ें बताया हूँ। नाउ लेट मी जस्ट कम टू द डिपार्टमेंट, किस तरह के टैक्सेशन, क्योंकि लिटिगेशन की बात है तो किस तरह के टैक्स ऑब्जेक्शंस होते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द लिटिगेशंस जो आज के हैं, जो जीएसटी में लिटिगेशंस हैं, दीज आर ऑल फैक्चुअल बेस्ड। इशू वाइज जीएसटी लिटिगेशंस बहुत कम है, इशू वाइज देयर में भी, बट जीएसटी एक्ट ऐसा बनाया गया है जिससे कि मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन आपके फैक्चुअल बेस्ड हो गए। फैक्चुअल बेस्ड का मतलब क्या हुआ? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आपने जीएसटीआर 1 में टर्नओवर डिक्लेयर किया है और आपने टैक्स कैलकुलेट किया कि समथिंग 100 रुपया टैक्स होना चाहिए, लेकिन 3V में आपने पेमेंट नहीं किया, 3V में आपने 50 रुपये में पेमेंट किया, ये आपका डिस्प्यूट हो गया। ये हमें कैसे पता चल रहा है? एवरीथिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जनरेट होती है, हम आपको डिमांड करते हैं। दूसरा इशू क्या है? जीएसटीआर 2A में आपका टैक्स पेमेंट आपने परचेज किया, लेकिन 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 2A का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि पार्टी ने, जो सप्लायर है, उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया है और आप उसकी क्रेडिट लेके बैठे हैं। आप कहेंगे आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है आपकी, बट गवर्नमेंट इंटेंशन, जब आप अभी की जो बात हुई है 45 डेज में पेमेंट करना है, व्हाट इज द गवर्नमेंट इंटेंशन? देखिए, गवर्नमेंट के इंटेंशन आपके जीएसटी लॉ में दिखेंगे। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जीएसटी में कि अगर वह 180 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेमेंट करें या ना करें, लेकिन गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। टैक्सेशन इज नॉट अबाउट only collecting the tax, but creating discipline within the economy. 45 days is also a discipline. आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप सप्लाई करते हैं और पेमेंट करते हैं 6 महीने में, तो मतलब एक ट्रेडर जो है पूरे साल भर में 2 बार टर्नओवर करेगा अपना। अगर इसी को 45 डेज में गवर्नमेंट कन्वर्ट कर दिया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़ जाएगी? 1.5 महीने का मतलब ये हुआ आपका कम से कम भी तो 4 से 5 बार आप टर्नओवर रोटेट कर सकते हैं। जब आप रोटेट करेंगे तो इट इज द इजीएस्ट वे टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द इंटायर कंट्री। लेट अस थिंक इन दैट मैनर। गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि बस आपके ऊपर ये सारे जो प्रोविजन आ रहे हैं टू क्रिएट द डिसिप्लिन अमंग द ट्रेडिंग बॉडीज। We have to accept, maybe not today, maybe after some time we have to accept it. इस तरह के प्रोविजन आपको जीएसटी में भी लाए गए। सो 2 and 3V के डिफरेंस है, टाइम लिमिट के डिफरेंस है। टाइम लिमिट का डिफरेंस क्यों लगाया गया है कि जब आपका एनुअल रिटर्न फाइल हो जाएगा उसके बाद आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है आफ्टर एनुअल रिटर्न, ताकि आप प्रॉपर ढंग से एनुअल रिटर्न फाइल करें, टाइम के साथ फाइल करें। ये एक पेनल्टी प्रोविजन है कि ये जो इश्यूज हैं ये मोर देन 80 to 90% जो ट्रेडर्स हैं वो फुलफिल करते हैं। इट्स ओनली 10 to 15% दे आर नॉट डिसिप्लिन इन फाइलिंग द रिटर्न। तो इसीलिए ये सारे प्रोविजन लाए गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा टैक्स से मतलब नहीं रहता है, बट क्रिएटिंग द डिसिप्लिन अमंग द ट्रेडिंग बॉडीज इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इन फ्रेमिंग द लॉज। और किस तरह के प्रोविजंस हैं आपके 17.5, देखिए 17.5 जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन लाए गए हैं कि जो चीज़, देखिए जब आप खर्चे करते हैं तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसको ट्रेड से कोई रिलेटेड नहीं होता है, उसको डिसअलाउ करने की बात होती है।
तो 17(5) के सर्टन प्रोविजंस हैं जिसको मना किया गया है कि आप आईटीसी नहीं लेंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। आज मिक्स तरह का ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कुछ पर आपको टैक्स देना है, किसी पर टैक्स देना है, नहीं देना है। तो जिस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं उसकी भी आईटीसी आप ले रहे हैं, तो आपको रूल 42 में उसको रिवर्स करना है। प्रॉपर ढंग से आपने रिवर्स नहीं किया। टेक द एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, रियल सेक्टर वाले सब सारी क्रेडिट पहले लेते जाते हैं, और उसके बाद जब उनकी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाती है तो उसके बाद वो टैक्स आईटीसी लेके बैठे हुए हैं। अब एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया तो उनको तो जीएसटी देनी नहीं है, फिर भी वो रिवर्स नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोविजन को 17(5) में कवर किया गया है, क्योंकि अभी भी हमारे रूल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जैसे जैसे ये सिंप्लीफाई होगा, लाइक बहुत सारे प्रोविजंस लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस, इस सब पर अभी भी जीएसटी नहीं है। तो ये इसलिए ये सारे अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसे डील करें? सो लिटिगेशंस हैं, रहेंगे, लेकिन मैं इस बात से आपको बताता हूं कि आप जितने भी सो कॉज नोटिस आपको मिल रहे हैं वो मैक्सिमम फैक्चुअल बेस्ड सो कॉज नोटिस हैं, फैक्चुअल बेस्ड, और उसको आप फैक्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप प्रोविजन देखेंगे जीएसटी में, पहले क्या होता था कि एडजुडिकेशन, काफी समय लगता था एडजुडिकेशन करने में, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि एडजुडिकेशन का एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया है। मतलब आपको एक डिसीजन मिल जाएगा, कमिश्नर लेवल तक आपके डिसीजंस मिल जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि कमिश्नर लेवल तक चीजें एंड हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है एडजुडिकेशन में? द ट्रेडर, द टैक्स पेयर, वो सामने आके अपनी बातें रखते ही नहीं है। अगर वो एक बार सामने आए, आपको कैसे डील करना है? आप अपनी बात को रखें फैक्चुअल बेस्ड पर। जब आप अपनी बात को रखेंगे तो मैक्सिमम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको रिलीफ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है। आप जो बातें रखेंगे वो चीज़ें उनके ऑर्डर में जरूर आएगी, और जैसे ही आएगी तो उनके पास कंपल्सन है कि अगर आप फैक्चुअल चीज़ें बताए हैं तो आपको वो डिमांड ड्रॉप भी हो सकता है। सो मेरा एक ही सजेशन है कि आप हियरिंग पर जरूर जाएं, जो टाइम लिमिट दिया गया है उसको कंप्लाई करें। जितनी जल्दी आप अपने रिप्लाई दे सकते हैं तो आप रिप्लाई दें, जितनी जल्दी आप हियरिंग में अटेंड हो सकते हैं तो जरूर होइए, और फैक्चुअल चीज़ें जरूर बताएं। जनरल आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज डील विद द लिटिगेशंस। मुझे लगता है कि जो जीएसटी है, इट इज डेफिनेटली इन द इनिशियल स्टेज। आप चीज को समझें कि जो सेंट्रल एक्साइज और इनडायरेक्ट टैक्स था वो काफी समय से मतलब डेवलप हुआ और काफी डेवलप्ड हो चुका था। समय के साथ डिस्प्यूट समाप्त हो गई, लेकिन चूंकि देयर इज अ मर्जर ऑफ वैट एंड द सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट प्रेजेंट? द फेक इनवाइसिंग। व्हाट इज फेक? आपको फेक नहीं लगता होगा, लेकिन डिपार्टमेंट को फेक लगता है। आप आईटीसी तभी ले सकते हैं जब आपका गुड्स या सर्विसेज, देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट? आपके पास आप सर्टन आपके गुड्स जो हैं वो आप रिटेल में बेच रहे हैं, उस रिटेल में बेच के आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनवाइस नहीं ले रहा है, और आपकी जो बची हुई जो इनवाइस है वो दूसरे को बेच दे रहे हैं, या आप एक इनवाइस कार्ड दे रहे हैं जिस पर कोई गुड्स और सप्लाई नहीं हुआ, जो बुक एंट्री जिसको बोलते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एवरी डे, एवरी कमिश्नरेट, मेरे पास रोज 10 ऐसे नाम आ रहे हैं जिसने फेक इनवाइसिंग का काम किया है। लेट अस वर्क टुगेदर कि जितनी कैंसर जैसी डिजीज जीएसटी में घुस चुकी है, फेक इनवाइसिंग, लेट अस वर्क टुगेदर। गवर्नमेंट चाहे तो एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत आसान है, ये कि हम आपके क्रेडिट को तभी देंगे जब पेमेंट हुआ है। 3B में हम कहेंगे आपके 2B में पेमेंट हुआ है, और पेमेंट हुआ है तभी हम आपको क्रेडिट देंगे।
गवर्नमेंट उस रास्ते पर जा भी रही है, टाइम लिमिट फिक्स कर दे रही है, 1-2 महीने का गैपिंग दे रही है, लेकिन उसको जो नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं, जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगी. सो गवर्नमेंट इज स्लो इन दैट, बट एज अ सोसाइटी लेट अस वर्क टुगेदर कि जितनी डिजीज टैक्सेशन में आई हैं, लेट अस सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वंस वी सॉल्व द प्रॉब्लम, आई एम श्योर, सी आपके टैक्स रेट ज़्यादा नहीं है. एक्चुअली आप कैश पेमेंट से मुश्किल से 2 से 3%, 4% करते हैं. द टैक्स रेट इज नॉट वेरी हाई. सो लेट अस वर्क टुगेदर एंड मेक इंश्योर द डिजीज विच हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टैक्सेशन दैट शुड बी रिमूव्ड. एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये समस्याएं दूर होगी, वैसे वैसे आपके टैक्स रेट कम होंगे, लिटिगेशंस कम होंगे, आपके कंप्लायंस बढ़ते जाएंगे, लिटिगेशंस कम से कम होते जाएंगे. थैंक यू. Thank you, Kedia sir. Definitely you raised certain issues which need the businessmen to comply, and definitely in time to come, because everything is now transparent, everything is on the portal, time to come this fake invoice and all will not be there, because now whoever doing this cannot run away from the department. We have closed the filing of GSTR 1 of the next month. If you are not filing GSTR 3B, means not paying the tax. If somebody is taking credit more than the credit coming in 2B, we are not allowing them to take. So it is not going to be last long, I can say. Now I am requesting Arpit Haldia, Dr. Arpit Haldia. Since he is younger brother to me, I always call him Arpit only. So please take yourselves. A very good afternoon to all, and dignitaries on the dais, Shri Manoj Kumar Kedia Sahab, Chairman of the session, Shri Sushil Kumar Goyal ji, dignitaries of the dais, senior members of the profession. Today I have been given the topic to discuss on the litigation aspect, and since there is a time constraint, so I will try to do justice with the subject. And since few of the data were shared by Kedia Sahab, so continuing with the data sharing, GST migrated with 67 lakh taxpayers. As on today, we have 1.4 crore taxpayers, out of which 44 lakh are the ones who have migrated from the earlier regime. So in the last 7 years, the tax base have grown by 1 crore. Secondly, we have achieved somewhere a compounded tax increase rate of 14% in the last 7 years. We started with some 90,000 crore rupees and we have reached now to an average of 1.8 lakh crore rupees. The latest data which has been shared by GSTN regarding the compliance of the returns, which is available on the GSTN portal, it says for the state of Rajasthan, since I belong to the state of Rajasthan, for the month of April 2023, 99% of the returns have been filed by the taxpayers which were due. So the compliance has been increasing, the taxpayers are complying, and few
persons who are not compliant does not make the entire fraternity non-tax compliant. We are trying our best, and since the topic is given regarding the litigation aspect, so starting with the show cause notices and essentials and prerequisites. Commonly we receive a show cause notice. If we go through relevant sections of CGST Act, there is section 75 which gives a proper opportunity of hearing to the assessee, not only with regard to the show cause notice but also with regard to how the order has to be passed. Coupled with the protection given in Article 14 of the Constitution regarding arbitrariness and the principle of natural justice. If we keep these two things, because why this protection is required? See, whenever I am receiving a notice, the department is alleging that this is a wrong which has been committed by you, and once I am required to reply, I should be aware of all the facts and the circumstances and the evidence and the RUDs which are available with the department. I cannot be asked to presuppose and assume and to think that what has been thought by the department and what has to be replied by me. So commonly we receive some notices like notice was issued under section 73 for 1718 for ITC excess claimed in 3B vis-a-vis ITC reflecting in GSTR 2A. Do we see anything wrong in this? Sir, that is completely regarding how the show cause notice has to be issued. There is no section even for which I have done the non-compliance. There is no reference of the section, because I am not required to reply that I have complied all section from section 1 to section 174. I have to reply specifically on the part for which I have done the non-compliance, and it is upon the officer who is issuing the notice to say that this is the relevant section for which the non-compliance has been done. Coming to the next, the notice provided why the penalty shall not be levied under the provision section 122. Is the notice correct? Section 122, when the notice says that why not a penalty shall be levied under section 122, am I required to report? Because under section 122 subsection 1 there are 21 offences, under section 122 1A there are 5 offences, under section 122 2 there are 10 offences, and under section 122 3 there are 5 different offences. Am I required to reply that I have not committed all the 35-40 offences? No. The notice has to be very specific that what is the non-compliance which has been done. I cannot be asked to say that since you have availed a wrong credit, why not a penalty can be should not be imposed under section 122? No, sir. 122 has at least 35 to 40 different offences, and it is on the person who is alleging against me to say that this is the relevant section in which you are liable to pay the penalty. So this is how, because okay, when Tran 1 was required to be filed, howsoever I was good on merits, if I had not filed the Tran 1 by 27th of December 2017, I was not allowed the credit. It was only by way of decision in Philco Trade by Honorable Supreme Court that after 6 years, when my money value was reduced to half, I was allowed a Tran 1 credit. And what was said? That whatever has been written in the law, it has to be done in the same manner. Similar goes for the proceedings also. Whatever has been written in the law, it has to be done in the same manner. So starting with the importance of assessment and self-assessment. See, definition of assessment. Now if we go through definition of assessment, it means determination of tax liability under this act. That is section 73 and 74. And then it includes self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment. If an order under section 73 or 74 is passed against me, I say that assessment has been carried out. And it is an authority of the law that since the assessment has been carried out, it has got the backing of the law. In the same line,
we have self assessment also. When definition of assessment says it means determination of tax liability, that is section 73-74, it also includes self assessment, which is nothing but section 59. And what is section 59? It says that every person shall self assess the tax payable under this act and furnish a return for each tax period. That means whenever I am filing a 3B, there is a self assessment which is being carried out, and it is on the same level of any order passed under section 73 and 74. So what, when I get an acknowledgement of 3B, it is a self assessment under the GST Act. And when it is a self assessment, that means I have discharged my liability. Now the onus is upon the department to prove along with the evidence that what is the wrong which has been committed by me and what are the relied upon documents available with them on the basis of which they think that I have committed some wrong. अब यहीं से सेक्शन 155 की रेलेवेंस आती है. जब हम सेक्शन 59 और 155 को साथ में पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि पूरे जीएसटी में लिटिगेशन को किस तरह से माना गया है. अगर सेक्शन 155 नहीं होता तो पहले तो ये देखते हैं सेक्शन 155 क्या बोलता है. सेक्शन 155 ये बोलता है कि जो जना आईटीसी क्लेम करेगा द बर्डन टू प्रूव दैट इज एलिजिबल इज अपॉन दैट पर्सन. क्या जरूरत पड़ी 155 डालने की? क्या जरूरत पड़ी 155 डालने की? नहीं डालते, सेक्शन 59 ही रहने देते. देखिए सेक्शन 155 की रेलेवेंस इसलिए पड़ी कि सेक्शन 59 क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है. इसका मतलब है कि आईटीसी मैंने गलत ली है, इसका बर्डन टू प्रूव भी डिपार्टमेंट पे हो जाता. पर जो ईकॉम गिल्ड ट्रेडिंग कंपनी का जो डिसीजन आया 13 मार्च 2023 को, वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, बर्डन टू प्रूव आईटीसी का आपके ऊपर है, आप बताओगे कि आप क्यों एलिजिबल हो. तो इसका कॉन्ट्ररी क्या हुआ, आईटीसी को छोड़ के कुछ भी मैंने करा है उसको अगर गलत बताना है तो उसका बर्डन किस पे है? डिपार्टमेंट पे. तो मियर ये बोलना कि हमको लगता है कि आपने गलत टैक्स किया है, इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज द बर्डन टू प्रूव इज ऑन द डिपार्टमेंट. मैंने आईटीसी सही क्लेम करी है, सेक्शन 155 आई हैव टू प्रूव. एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ बर्डन टू प्रूव? Tripura High Court recently has said that burden to prove is different from onus to prove. Burden to prove never shifts, but onus to prove always shifts. Burden to prove के दो aspect होते हैं. One, you have to prove the existence of the facts. Existence of the fact मतलब मैंने ITC ली है, मेरे ये डॉक्यूमेंट है. Second part, जब आप fact को prove कर देंगे, then you have to produce the evidence. What is the evidence? The goods have moved. Once the evidence is proved, then the onus shifts upon the department to prove that this is the incorrect claim of the credit. तो जब हम 59 और 155 को देखते हैं तो आईटीसी को छोड़ के अगर कोई भी शो कॉज नोटिस है, the onus and the burden is on the department. In case of ITC, the first burden to prove is upon me, and the scope of the burden to prove has been क्लेरिफाइड बाय ईकॉम गिल्ड ट्रेडिंग कंपनी कि आपके पास 6 चीजें होनी चाहिए जिससे आपका बर्डन टू प्रूव डिस्चार्ज होगा. हाउ मेंसरिया कैन बी इनकॉर्पोरेटेड? देखिए 3 तरह के लॉज हैं, सिविल, क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल. क्रिमिनल की जब मैं बात करता हूं, इट अफेक्ट्स माय पर्सनल लिबर्टी, देयर हैज टू बी अ मेंसरिया. और वो मेंसरिया किसको प्रूव करना है? द पर्सन हु इज मेकिंग द एलिगेशन. बहुत क्लियर है, देयर हैज टू बी अ मेंसरिया एंड द मेंसरिया हैज टू बी प्रूव्ड बाय द पर्सन हु इज मेकिंग द एलिगेशन. बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट अ क्रिमिनल एक्ट, उसमें सिर्फ ये प्रूव नहीं करना कि ये गलती हुई है, ये भी प्रूव करना है कि ये गलती जानबूझ के हुई है. जब मैं सिविल लाइबिलिटी की बात करता हूं तो सिविल में मेंसरिया इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. उसमें क्या प्रूव करना है कि ये गलती हुई है, जानबूझ के हुई है, जाने अनजाने हुई है, इट इज इमटेरियल.
The only thing which needs to be proved is that the wrong has been committed, whether knowingly or unknowingly, it is immaterial. And what is quasi-criminal? Any offense wherein the punishment is both in terms of monetary as well as prosecution. तो एक जो बहुत फेमस सा केस है हिंदुस्तान स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, एंड विच वी कॉमनली रेफर, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बोला था हिंदुस्तान स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिविल ऑफेंसेस, it is applicable only in case of quasi criminal offenses. In case of civil offenses that judgment has no relevance. तो अब चीज ये आती है कि अगर हम देखें तो by default GST is a civil statute except for section 69 and section 132 which provides for prosecution. It is a civil statute wherein the only thing which is required to be proved is that the offense has been committed. पर सिविल ऑफेंस में कैसे क्रिमिनल टच दिया जाता है? When mens rea is incorporated into the statute. अब mens rea कैसे incorporate होता है सिविल स्टैट्यूट में? When we have the words like voluntarily, intentionally, negligently, knowingly, fraudulently, dishonestly, rashly, omits, without lawful authority. जब ये वर्ड किसी भी सिविल स्टैट्यूट में आ गए, इसका मतलब है कि mens rea has become an ingredient in the offense, and when mens rea has become an ingredient, who has the onus to prove? The department has the onus to prove. Merely saying that this has been committed would not be sufficient. This has been committed intentionally, that also has to be proved, and that is the difference between a section 73 and a section 74. Section 73 only speaks of committing an offense. Section 74 says willful commission of that offense, and the part willful has to be proved by the department. So when we read a statute, what is the difference between a false invoice and an incorrect invoice? Supposedly the statute refers an incorrect invoice, and when the statute refers a false invoice, what is the difference between a false invoice and an incorrect invoice? Incorrect is गलती होनी चाहिए, जानबूझ के हुई है, कैसे हुई है, इट इज इररिलेवेंट. बट व्हेन द टर्म इज यूज्ड फॉल्स इनवॉइस, जानबूझ की गलती होनी चाहिए. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ रीडिंग द स्टैट्यूट एंड हाउ एंड व्हेन एंड वेयर द वर्ड हैज बीन यूज्ड. तो जब हम लिटिगेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड हाउ द वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टैट्यूट आल्सो बिकम्स रेलेवेंट. Essentials of show cause notice. So for essentials of show cause notice there are lot many judgments, पर उन सब judgments को अगर compile करके किसी भी जगह दिया गया है, वो ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 96/1/2017 dated 19th January 2017, which was issued by the board in pre-GST regime, but it is a bible that how a notice has to be issued, because it incorporates all the landmark principles which were laid down in all the landmark judgments and gives that what are the essentials of a show cause notice. तो जब मैं बात करता हूं तो ये 8-9 अलग अलग उन्होंने दे रखे हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो किसी भी शो कॉज नोटिस या प्रोसीडिंग्स में इनवेरिएबली फॉलो होने चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज द लीगल फ्रेमवर्क. कौन सा अथॉरिटी में वो एससीएन इशू किया गया है, कौन से सेक्शन में किया गया है. जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक वो एक वैलिड एससीएन नहीं होगा. इट क्लियरली से द अथॉरिटी इशूइंग द एससीएन शुड क्लियरली ले डाउन द लीगल प्रोविजंस in respect of which the person shall be put to notice. Extended period in disputed areas of interpretation. Interpretation क्या है? Interpretation is something which is perceived by one person differently and the another person differently. It's a matter of how the law has to be read and how the scope has to be analyzed. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हर जगह गलत टैक्स रेट लगाना इज नॉट विलफुल. देयर कैन बी अ डिफरेंस इन हाउ द लॉ हैज बीन अंडरस्टूड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कमीशन अपील्स ने एक डिसीजन दिया, ट्रिब्यूनल ने उसको ओवरटर्न कर दिया.
ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट ने ओवरटर्न करा, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के डिसीजन को डबल बेंच ने ओवरटर्न किया, डीबी के डबल बेंच के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने किया, 3 जजेस को 5 ने किया, 5 को 7 ने किया, 7 को 9 ने किया, 9 को 13 ने किया। अल्टीमेटली 13 से जो जो डिसीजन कॉन्कर नहीं हो रहे थे, क्या वो सबको लॉ नहीं आता था? दैट इज इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं था कि 13 जजेस बेंच ने जो फाइनली होल्ड किया और उसके जो कॉन्ट्री जो भी प्रीवियस डिसीजन थे किसी को लॉ नहीं आता था, सबको लॉ आता था। द ओनली थिंग इज हाउ द लॉ हैज टू बी रेड, एंड दैट्स व्हाई द रूल ऑफ मेजॉरिटी प्रिवेल्स इन केस ऑफ अ डिसीजन बाय कोर्ट। केशवानंद भारती 1973 13 जजेस बेंच डिसीजन, मेजॉरिटी 7:6। तो 6 जनों को नहीं आता था लॉ, आता था, और मेजॉरिटी वाज in particular decision field. That is interpretation, and that's why extended period cannot be invoked in case of interpretation. Service of show cause and RUDs, it is a mandatory thing which has to be done, and if it has not been done, we have all the right to ask for the RUDs. Adjudication order, it should be a speaking order, and the speaking order is something which for which there is no additional requirement is to be made at the time of the appellate proceedings. Order should speak for itself. Analysis of the issues. Now this is one very important thing. The adjudicating authority is expected to examine all evidences, issues and material on record, analyze those in context of alleged charges in the show cause notice. He is also expected to examine each of the points raised in the reply to the SCN and accept or reject them with cogent reasoning. तो अगर आपने 10 ग्राउंड्स लिए हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अथॉरिटी हैज टू डिस्पोज ऑफ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द 10 ग्राउंड्स, एंड दैट्स वेयर हाउ द सबमिशन इज बीइंग ड्राफ्टेड बिकम्स इंपॉर्टेंट. देखिए, जब मेरे को ट्रान 1 रिजेक्ट किया गया था तो मेरिट पे मैं चाहे कितना ही अच्छा होता था, मेरे को बोला गया कि नहीं 27 दिसंबर 17 तक अगर आपने ट्रान 1 नहीं भरा तो आप क्रेडिट नहीं मिलेगी. दैट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट ऑन माय पार्ट. वेदर एट ऑल आफ्टर फाइलिंग आई एम एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ मेरिट बेस्ड ग्राउंड. So similarly, when I am raising a particular submission, there has to be a sequencing of the technical grounds and then the merit aspect. So if a show cause notice is not containing the relevant provision under which, for which I have done the non-compliance, it should not be the last ground, it should be the first ground. Because if my claim is rejected on the part of merit, then who will go to the technical aspect? The technical aspect should come first and then the merit aspects. And the circular says that the authority is required to analyze all the grounds which I have made, or either accept them or reject them. Body of the order, at any cost the findings and discussion should not go beyond the scope of the ground of the show cause notice. So whatever is there in the SCN, the order should be also within that scope. Quantification of demand, the adjudication order cannot go beyond the demand which has been quantified in the show cause notice. So some important decisions which have come in GST for the show cause notice. Order to be passed considering the document submitted, Madras High Court judgment. Order containing no reference to the petitioner's reply to the notice, Delhi High Court judgment, that the order has to contain reference to the submission of the petitioner. Validity of unsigned order and notice, there are 2 decisions on this aspect, that the order has to be signed and the unsigned order has no validity. Opportunity of being heard is different from giving written submissions and mode of personal hearing. Merely because I have been given an opportunity to submit my reply does not mean that the opportunity of being heard personally also has been given to me. These are 2 different things, and therefore both the things have to be followed. Service of notice along with DRC 01. Now there is an instruction from the board 23rd of November 2023 wherein they have said that all the notices have to be served along with DRC 01, and DRC 01 has to be uploaded on the portal also. Providing a time limit lesser than 30 days for filing the reply. When statute gives me 30 days to file a reply,
time limit lesser than that cannot be given to me. Demand of notice under section 73 and 7512, because 7512 says notwithstanding anything section 73 and 74. So whether at all quantification of interest has to be done under section 73 or whether it can be straight away recovered by treating it as self-assessed liability under section 7512, that has been partly discussed by Honorable Madras High Court in the latest decision. Someone under section 70, the independent inquiry is not dependent on section 73, and last but not the least, section 61 is not a prerequisite for section 74. So taking this, whether section 61 is a prerequisite to section 73, 74, the beauty of GST is that we can go through the entire development of the law reading the GST Council minutes, that how the law has been drafted and how it has evolved. So if we go through section 73 and how it was in section 71 when the model GST law was there, it was previously section 67. And it said where any tax has not been paid or short paid. So then the question came that if section 73, which was section 67 at that time, provided that where any tax has not been paid or short paid, तो ऑफिसर को पता कैसे चलेगा कि टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड है या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है? तो वो प्रोसेस तो हमको देना पड़ेगा एक्ट में कि उसको पता कैसे चला कि टैक्स शॉर्ट पेड है या नॉट पेड है. So that's why the term where it appears to the proper officer has been inserted. तो जो ये appears word है, ये insert क्यों किया गया? ये इसलिए insert किया गया ताकि एक chronology बने कि ऑफिसर को पता चला कि आपने टैक्स पे नहीं किया है या कम किया है. अब कैसे पता चलेगा? appears को लिमिट नहीं किया उन्होंने. अगर चाहते तो लिमिट कर देते, बोल देते where it appears to the proper officer by way of proceeding under section 61, 65, 67 or 70, but they did not restrict it, they only used appears. So therefore when the term appears has been used, that means any of these proceedings 61, 65, 66, 67, 70, 71, 151, ये भी एक तरीका हो सकता है या फिर डायरेक्टली सेक्शन 73 भी हो सकता है बेस्ड अपॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट विच आर देयर ऑन द फाइल. Quantification of penalty. Now coming to the aspect of quantification of penalty, section 122. जैसा हमने बात करा, mens rea has to be identified. So when I read through section 122, there are two parts to section 122. One is identification offense, and then there is a quantification of penalty in that offense. अब वो आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के टाइम पे मेंस रिया कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन पार्ट पे हो चाहे वो क्वांटिफिकेशन के पार्ट पे हो. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 122(1)(2). अब सेक्शन 122(1) लेते हैं एग्जांपल. वेयर एनी टैक्सेबल पर्सन सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply. Incorrect invoice हो चाहे false invoice हो चाहे बिना invoice के सप्लाई माल किया हो, क्या हमको कहीं मेंस रिया दिख रहा है यहाँ पे? चाहे कैसा भी इनवॉइस हो, चाहे कैसा भी ट्रांजैक्शन हो जहां पे गुड्स आपने विदाउट इनवॉइस के सप्लाई किए हो या फिर आपका इनवॉइस गलत हो चाहे फॉल्स हो, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो देयर इज नो मेंस रिया. बस चीज क्या है? ऑफेंस होना चाहिए. गुड्स शुड बी सप्लाइड विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस. इनकरेक्ट होगा मतलब जाने अनजाने कर दिया होगा, फॉल्स होगा जानबूझ के किया होगा, चाहे कैसा भी इनवॉइस हो, पर वो ऑफेंस होना चाहिए. तो ऑफेंस आइडेंटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंस रिया नहीं है, सिर्फ ये है कि ऑफेंस है. पर जब हम क्वांटिफिकेशन पे जाते हैं तो क्वांटिफिकेशन क्या बोलता है? पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और इक्वल टू टैक्स इवेडेड. तो इक्वल टू टैक्स इवेडेड का मतलब क्या हुआ? 10,000 रुपया टैक्स इवेडेड. इवेडेड मतलब मेंस रिया आ गया. तो चलिए मैंने इनवॉइस गलत इशू करी थी. आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि जानबूझ के करी थी या बिना जानबूझ के करी थी, पर जब क्वांटिफिकेशन पे जाऊंगा और पेनल्टी को असेस करूंगा तब ये आएगा कि कितनी लगनी चाहिए, 10,000 रुपए या इक्वल टू टैक्स इवेडेड.
तो अगर इक्वल टू टैक्स एवेडेड लगानी है तो वहां पे तो मेंसरिया बताना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपने गलत इनवॉइस इशू कर दी इसलिए इक्वल टू टैक्स एवेडेड की पेनल्टी लग गई। अगर ऐसा होता तो इक्वल टू टैक्स पेएबल वर्ड होता वहां पे। तो ये मेंसरिया और उसका आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन पार्ट था और प्रोसीडिंग्स को लेकर था। अब 5 मिनट और लूंगा। लॉ किस तरह से वर्क करता है। आज हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि भाई जीएसटी में इसका डिसीजन आया कि नहीं आया। आरसीएम मैंने पे नहीं किया और आरसीएम में मैंने पे नहीं किया तो मेरे को क्रेडिट मिलेगी नहीं, और क्रेडिट मिलेगी नहीं तो क्या रेवेन्यू न्यूट्रलिटी या कंसेप्ट आरसीएम में लगेगा कि नहीं लगेगा। इंटेंट टू इवेड को कैसे प्रूव किया जाए, सेक्शन 73, 74 में क्या उसके बेंचमार्क्स होंगे। हम बहुत सारे जजमेंट ढूंढते हैं जीएसटी रेजिम में पर हमको मिलते नहीं है, क्योंकि लॉ एक नया लॉ है, इवॉल्विंग लॉ है। पर जब मेरी आईटीसी डिनाई करनी होती है तब कौन से जीएसटी रेजिम के जजमेंट के बेस पे डिनाई होती है? क्या कौन से जजमेंट के बेस पे डिनाई होती है? प्री जीएसटी रेजिम के जजमेंट। एएलडी ऑटोमोटिव, it is not a GST regime judgment, it is a pre-GST regime judgment. The only thing is that the law should have been perimetria both in the pre-GST regime and the post-GST regime. तो अब चीज ये आती है कि क्या मैं पुराने जजमेंट्स मेरे काम के हैं? तो देखिए, आप देखिए सिर्फ टैक्समैन पोर्टल के मैं सिर्फ काउंट दे रहा हूं आपको, जहां पे सेंट्रल एक्साइज एक्ट के 18,165 जजमेंट है, सेंट्रल एक्साइज रूल्स के 7,000 जजमेंट है, टैरिफ के 2300 जजमेंट है, क्रेडिट रूल्स के 2600 जजमेंट है और सर्विस टैक्स के 9,500 जजमेंट है। और अब देखिए कहां पे किन किन इश्यूज पे जजमेंट है। कैन पेनल्टी बी लेविड इन मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट? There is a judgment by Honorable Apex Court. Can penalty be levied when tax paid before the issue of notice? There is a judgment by Bangalore Sestat. Can penalty be levied when department had conducted audit earlier and had knowledge about the activities of taxpayer since then? Allahabad Sestat judgment. और ये सिर्फ कुछ जजमेंट्स हैं जहां पे सारे मैटर्स पे अवेलेबल है। The only thing is we are restricting ourselves to the study of GST judgment. We are not going, जैसे सर ने बोला कि majority of the chartered accountants were not practicing in the indirect tax era, that is service tax and central excise. Majority were not practicing, and since we have joined in GST era, so we are not conversant with the previous judgment which are on the same subject in the pre-GST regime. अब देखिए ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, विमल झुंझुनवाला वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। रिफंड का मैटर था। द petitioner relied upon the judgments of service tax regime, but they were not considered, stating that they are judgments coming from the pre-GST regime. What Honorable High Court said, that the officer failed to take note of the ratio decidendi which can be culled out in various decisions which have been relied by the appellant, more particularly the decisions which were rendered during the service tax regime. तो प्री जीएसटी रेजिम के जजमेंट जो हैं वो हमारे काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी है कि उनमें से हमको रेशियो डेसिडेंडी निकाल करके और उसको हमें करंट रेजिम में अप्लाई करवाना है। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडी, कब पुराने रेजिम के जजमेंट्स मेरे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे उन्होंने बोला कि कोई भी जजमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ फैक्ट, सेकेंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया है और उस लॉ को कैसे इस प्रेजेंट केस में उन्होंने अप्लाई किया है। एंड थर्ड एंड फाइनल इज द जजमेंट बेस्ड ऑन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो 3 पार्ट हुए, फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ एंड द फाइनल डिसीजन। ना तो क्वेश्चन कम्स, इन तीनों में से हमारे लिए सबसे काम का कौन सा है? So the error which we make sometimes, that we go on to the final decision, what the judgment said. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहला और तीसरा जो है, this the first and the third point are peculiar to the parties to the case. What is a binding precedent is the statement of principles of law which are given in the judgment. उन्होंने किस फैक्ट पे क्या डिसीजन दिया, दैट इज नॉट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। द बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ।
आप देखेंगे नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अभी जजमेंट आया था, जहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे उन्होंने बोला था, तो जो पेटिशनर था उन्होंने पेप्सी को इंडिया कंपनी लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाय अपॉन किया था फॉर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, कि सर ये अगर मैं आरसीएम भर भी देता तो क्या होता, वो तो रेवेन्यू न्यूट्रल होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला कि वो दो जजमेंट जो आपने एसकेएफ और पेप्सिको में रिलाय अपॉन किए हैं, दे डू नॉट ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, दे आर समरी जजमेंट वेयरइन द डिसीजन बाय द ट्रिब्यूनल हैज बीन merely relied upon, therefore there is no ratio decidendi given by those two judgments. तो रेशियो डिसिडेंडी कब होगा, जब लॉ को एनालाइज किया जाएगा और दैट एनालिसिस ऑफ द लॉ इज अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर मैटर्स। So however, for the purpose of doctrine of precedent, ingredient 2 is the vital element in this decision, and this is the ratio decidendi. The conclusion is not ratio decidendi, the conclusion is not binding. What is binding is the statement of principle of law, and that's why when we are applying the pre-GST regime judgment, we have to go and see and understand whether the law has been drafted in the similar manner or not. तो आप सेक्शन 73, 74 आप देखेंगे जीएसटी regime में, तो it is parameter to section 73, 74 which was there in the service tax regime. There are many provisions which have been straight away taken from the pre-GST regime and incorporated. Section 136, reliance upon the statement or admission by the person in summon proceedings when it is a binding precedent, same provision पहले भी था. So with this, I would like to conclude my today's session, and I have tried to do justice with the topic given the time frame. Thank you very much. We have a nice deliberation by CA Dr. Arpit Haldia. Now I request CA Prakash Patwari to present formal vote of thanks. Thank you. Legislation and also as good as दाग अच्छे हैं, because we professional are here as सर्फ एक्शन. सर, टीम बीपका की ओर से श्री मनोज जी केडिया का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं एवं महाशय, आपने अपने व्यवहारिक व प्रशासनिक अनुभव से हमें जो अवगत कराया, हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा. सीए अंशुल भुवानिया जी से आग्रह है कि श्री मनोज केडिया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमारे प्यार व स्नेह का अवलोकन करें. Thanks to CA Arpit Haldia ji, who nicely delivered his topic and justify our expectation. Requested to CA Rupesh Agrawal ji to present memento to CA Arpit Haldia ji. Requested to all participants to join our next session after lunch, which is for 45 minutes now. Thank you.